thanks very much for tuning in. You're watching Times Now Live. My name is Amitav Vadva. We'll get you the details that has now evoked a lot of reactions. This is 15 years after a series of blasts rocked the old walled city of Jaipur, killing over 70 people. No one stands guilty today for that heinous crime till this date. Now, the 4 people who were convicted and sentenced to death by a trial court back in 2019 have all been acquitted by the Rajasthan High Court. The court has also upheld the acquittal of the 5th person by the trial court, and the High Court, while pronouncing the verdict yesterday, came down heavily on the investigative agency, calling the probe as shoddy and flawed. In a scathing remark, the High Court said that the approach of the investigative agency was callous and there was no integrated approach that was adopted by the state. Calling it a classic example of institutional failure, the High Court has now directed the Rajasthan DGP to act against the erring officers of his probe team. अपना जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले कोर्ट ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है, जिस दुख में हम सब लोग शरीक हैं कि इतनी बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इमोशनल होकर किसी आदमी को सज़ा नहीं की जा सकती। तो कोर्ट ने और इसी वजह से एटीएस के इंक्वायरी के तरीके की वजह से कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो ऐसे इनकॉम्पिटेंट ऑफिसरों के खिलाफ में कार्रवाई करें जिनकी वजह से असल गुनाहगार तो बच गए हैं, बाहर घूम रहे हैं और बेगुनाह मासूम लोग जो हैं वो जेलों में डाल दिए जाते हैं। Now, it was 71 people who lost their lives and over 180 of them who were injured in serial blasts that happened back in 2008. 9 bombs using RDX exploded at different locations at Jaipur's crowded old city in the evening. The blasts were so planned that the people running away from one blast site ended up running into more explosions as well. It was the IM or the Indian Mujahideen that time had taken responsibility for the blast, and an email that was sent to one of the media houses. Now the BJP has targeted the Ashok Gehlot Sarkar over the investigation by the ATS in the case, saying that the judgment has cast a doubt on the prosecution by the state. उनका बरी होना इतने बड़े संज्ञेय अपराध पर ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की पैरवी पर शंका पैदा करता है। और जिस तरीके से एटीएस ने सबूत पेश किए, काट छांट कर पेश किए और न्यायालय ने जिस तरीके से कहा है कि इसमें पैरवी ठीक तरीके से नहीं हुई, सबूत ठीक तरीके से नहीं आए, जांच का जो पक्ष है वो शंका पैदा करता है। ऐसे में इस तरीके के संगीन मामले में सरकार की न्यायिक पैरवी की लापरवाही ये संदेह पैदा करती है। मुझे लगता है कि ये भी राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। As far as the verdict that came out from the Rajasthan High Court yesterday, Times Now has now accessed the audio copy of the Jaipur 2008 blast, and it goes on to say very important points that have been made, that this case is a classic example of institutional failure resulting in botched up investigation. We fear this isn't the first case to suffer due to failure of investigation agencies, and if they are allowed to continue the way they are, this certainly won't be the last case in which administration of justice is affected due to shoddy investigation. भंवर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं फिलहाल। भंवर, 71 लोगों की जाने गई थी, 180 लोग से ज्यादा घायल हुए थे, लेकिन इसके पीछे आखिरकार कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये आज तक फिर पता नहीं चल पाया, क्योंकि लापरवाही कहां से हुई, किस तरफ से हुई, उसके ऊपर कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, ठीक से सबूत नहीं पेश किए गए, जांच शीट जो बनी थी उसमें ठीक से जांच प्रक्रिया ठीक नहीं रही, इसलिए बिना सबूतों के, बिना ठीक से इन्वेस्टिगेशन के इस केस में उन 4 लोगों को बरी कर दिया गया जिनको सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने उनको बरी किया है। एक व्यक्ति है जिसको किशोर न्यायालय के लिए भेज दिया गया, क्योंकि उसकी उस समय उम्र जो थी 16.5 साल बताई गई है। तो ऐसे में खुद कोर्ट ने ये कोड किया कि इन्वेस्टिगेशन पुअर रहा है, फेलियर रहा है। और विपक्ष ने जब सवाल उठाए तो विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरीके से एटीएस ने जो जवाब पेश किए, एटीएस ने जो जांच की, वो जांच प्रक्रिया ठीक नहीं रही, सबूत ठीक से पेश नहीं कर पाए, इसलिए ये घाटा उठाना पड़ा उन परिवारों को जिनके साथ ये घटनाक्रम हुआ। आप देखिए कि आज भी ऐसे कई परिवार हैं जो इस दंश को झेल रहे हैं। उनके बच्चे अब काफी बड़े हो गए हैं, क्योंकि 2008 का मामला था और 70 से अधिक लोगों की इसमें मौत हुई, करीब 180 के आसपास लोग घायल हुए। हॉस्पिटल, एसएमएस अस्पताल में उस वक्त जगह नहीं बची थी
लोगों की इतनी भीड़ वहां पर हो गई थी और एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हुआ। अब देखिए, चाहे वो चौपड़ की हम बात कर लें, चाहे वो हनुमान मंदिर की बात कर लें, चाहे चांदपोल की बात कर लें, और आज भी उन जख्मों के निशान वहां पर बाकी हैं। आप देखेंगे वहां की दीवारों में, वहां के लोहे के जो बोर्ड बने हैं उनमें वो छर्रे आज भी उस दास्तान को बयान करते हैं, जिस पर कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुआ। अगर इन्वेस्टिगेशन ठीक होता तो शायद जख्मों के उन निशानों को भी थोड़ी राहत मिलती। जी, वो अभी तक नहीं हो पाया है, कितने साल अभी बीत गए हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दिस जजमेंट दैट हैज बीन प्रोनाउंस्ड, दीपक, बिकॉज राइट फ्रॉम द डेथ सेंटेंस दैट इज नाउ बीन कन्वर्टेड टू एक्विटल. Right, Amita, like you mentioned, the court has come down heavily on the state machinery for its lapses in the probe, and this is the order copy that we have accessed. And if I have to read the operative part, the court says the police or investigation agency is expected to perform their duty in a very cautious, sincere, devoted, diligent manner in accordance with law as per the statutory mandate and in accordance with settled position of the law. It is the duty of the police investigation agency to secure and record the complete evidence, to investigate in a sincere manner, to identify the culprits or the accused and frame charges, and also assess the prosecution. However, in the instant case, the investigation agency has utterly failed to do so. The court has no hesitation to hold that the investigation was flawed, shoddy, and that there were lapses on part of the investigation team. The apex court has time and again, more particularly, it has cited a case in this order copy, and it has also called it a callous, lethargic and a negligent approach adopted by the investigation agencies. Then it will be the duty of the court to pass appropriate strictures and or to give appropriate directions, as the occurrence of the crime is a breach of public right. Now, in the 8th point, the court has asked the Director General of Rajasthan Police to initiate appropriate inquiry or disciplinary proceedings against the erring officers of the investigating team. Amita. दीपक, थैंक्स वेरी मच फॉर दी अपडेट. भंवर, आपके पास दोबारा लौटते हुए, क्योंकि अगर हम बात करें, यह अक्सर देखा गया है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है राजस्थान में. अगर 2008 से 2013 की बात करें तो अशोक गहलोत ही थे उस वक्त मुख्यमंत्री की. अब बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि तुष्टीकरण की वजह से यहां पे जो 4 आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया कोर्ट की तरफ से. देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया है और घटनाक्रम भी कुछ इस तरह के राजस्थान में हुए हैं, चाहे वो करौली का इंसिडेंट हो, चाहे वो जोधपुर, उदयपुर की बातें हों, जहां पर तुष्टीकरण की बात बार बार सामने आई, विपक्ष ने आरोप लगाए. और इस मामले को लेकर भी विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि शायद तुष्टीकरण की वजह से सरकार के कहने पर इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट्स हैं उनको ठीक से वहां नहीं पहुंचाया गया. तो चूंकि कोर्ट ने भी उसको कोड किया है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुआ है. अब इन्वेस्टिगेशन ठीक तब नहीं होता है जब गृह विभाग कमजोर हो, क्योंकि एटीएस और तमाम उनकी एसओजी जांच एजेंसी, उनकी पुलिस, वो सब उन्हीं के अंडर काम करती. और देखिए, गृह विभाग फिलहाल चूंकि मुख्यमंत्री के पास ही है, तो ऐसे में इस तरह के सवाल उठना लाजमी सी बात हो जाती है. जहां तक मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले को थोड़ा इस तरह भी समझना होगा कि ये जो मामला था 2008 में ये मामला हुआ, लेकिन अभी जिन लोगों को बरी किया गया है उन्हें 4 साल पहले सेशन कोर्ट ने एक व्यक्ति को फांसी की सजा और 3 को उम्र कैद की सजा की बात कही थी. उसके बाद अभी 4 साल बाद जब ये हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, तो हाईकोर्ट में 4 साल बाद, ये जो 4 साल है उसमें भी आपको हाईकोर्ट में अपनी जांच, अपनी तमाम बातें, अपने तमाम सबूत पेश करने थे, वो ठीक से नहीं कर पाए. इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, आप ठीक से जांच नहीं कर पाए हैं, जांच एजेंसी को लताड़ा गया है कि आप ठीक से जांच नहीं कर पाए, इसलिए हम उनको बरी करते हैं. और एक व्यक्ति जो 16.5 साल उस समय उम्र हुआ करती थी, उसे किशोर न्यायालय में भेज दिया गया है. तो कुल मिला के चारों लोग उस आरोप से, उस सजा से तो बरी हो गए जो सुप्रीम कोर्ट से मिली थी. तो ऐसे में इन 4 साल के अंदर भी क्या एजेंसीज ठीक से अपनी बातें नहीं रख पाई, जो सरकार जवाब कोर्ट में ठीक से नहीं पेश कर पाई? तो ये तमाम सवाल हैं. किया गया कोर्ट की तरफ से कि आखिरकार जो भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स थे, जहां तक जो शॉडी इन्वेस्टिगेशन कहा गया है, फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन कहा गया है कोर्ट की तरफ से, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए. व्हाट इज नाउ बीइंग सेड आल्सो दैट द एडिशनल एडवोकेट जनरल हैज सेड दैट द स्टेट विल ऑल लाइकलीहुड आल्सो विल बी अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट टू चैलेंज द राजस्थान हाई कोर्ट रूलिंग. धन्यवाद आपका भंवर, हमारे साथ जुड़ने के लिए. दिस इज अ डेवलपमेंट दैट इज नाउ टेकिंग प्लेस देयर.